हेलो मेडिकोस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मेड टॉक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 सितंबर को नीट यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप में से कितने लोग वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आप या आपका कोई नोन उस एग्ज़ाम में बैठने वाला है तो ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए, नीट एस्पिरेंट्स। क्योंकि आज हमारे गेस्ट के रूप में आने वाले हैं दो बहुत ही होनहार लोग जिन्होंने एक्चुअली में फिजिक्स में फुल स्कोर किया था। जी हाँ, दे हैव स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 in their NEET UG exam back in 2020. So yeah, let's welcome our guest for the eve. Hi guys. Hi, ma'am. So कैसे हो आप दोनों? All good? Ma'am, we're fine. Yes, ma'am. First, let's Yes, ma'am. begin with I'm fine. Adrita. Hi, this is Advaita Bhaumik. I'm now a first year student at IMS BHU. My AIR was 862 and my whole score was 676, out of which I got Okay. 180 out of 180 in physics, in 161 in chemistry, and 335 in biology. Hello, I'm Shri Shobe and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. And I am currently a first year medical student in IMS BHU. And I passed NEET 2020 and my AIR was 689 and my total marks was 680. Oh my god! Wow! So, guys, tell me, like, what were your strategies and what were your routine during, preparation days? Ma'am, I was actually a morning person, so I woke up early, like 5 to 6, 5 o'clock or 6 o'clock. और पहले कुछ देर मेडिटेशन और ये सब करते थे, जिससे कि पूरा दिन कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम ना रहे। कंसंट्रेशन बहुत बेटर हो जाता है मेडिटेशन करने पे। उसके बाद मेरा सुबह सुबह उठ के फिजिक्स करने का, मतलब मैं सुबह सुबह फिजिक्स करती थी। उसके बाद शाम को मैं बायो करती थी। तो टोटल पूरे दिन में एटलीस्ट 10 आवर्स तक पढ़ाई हो जाती थी, और उसके साथ मेरे कोचिंग भी अलग से था। तो वो सब करके और रात को 11 बजे तक सो जाती थी मैं। तो Okay, ऐसे that is very nice. And now, Shrish, tell us about your routine. I was a school going child, so मेरा स्कूल 7:30 से 2 बजे तक चलता था एंड मेरी कोचिंग 4:15 to 8:15 होती थी. So I used to wake up at 6 and get ready for school. एंड देन मैं स्कूल खत्म होने के बाद डायरेक्टली अपनी कोचिंग की लाइब्रेरी चला जाता था रादर देन कमिंग होम. एंड आई यूज्ड टू स्टडी देयर फॉर अ बिट एंड देन मैं कोचिंग करता था एंड कोचिंग से वापस अपने घर पे 9 बजे के आसपास आता था. एंड देन अबाउट 9:30 to 10 I started my studies and I used to cover the topics which were dealt with in the class. And I used to study for about 1 to 2 hours on the days in which I had school. And I used to practice all the questions of the topics which were covered in the days when my coaching was off. It was 4 days a week, Monday, Tuesday, and That's Thursday, Friday. that is very actually that sounds very productive as well as very planned, because you said that you used to utilize your time during the holiday days, and that is amazing actually. So none of you mentioned about, like, don't you used to use like social media or anything, like phone पे कितना time जाता था and how do you used to manage it, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा. मैं यूज करता था फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बट अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ज़्यादा नहीं. एंड Okay. मेनली उससे अपने दोस्तों से बात करना एंड लोगों के टच में रहना ताकि आई डोंट फील आइसोलेटेड एंड आई डोंट फील प्रेशर्ड. तो इसलिए मैं सोशल मीडिया यूज करता था एंड कभी कभार मीम्स देखता था. Memes देखते थे. That is great. Okay. Memes actually act as therapy sometimes. Hmm. Yes. So you never felt कि social media is distracting you from your, you know, main goal? There were many ups and downs and during my journey of 2 years. So there were some times I used to feel कि I'm getting too much distracted by social. केकरा के घर की हो, हमको पहचानती हो, गूंगी हो. Media. So
I had to give my phone to my mother, and she used to lock it away while I was studying. But yeah, Okay, I okay, managed okay. somehow. That is actually nice. Well, you had a balance in your life while your preparation phase, and that is good. Okay. So, guys, now you both are going to tell us about like what were your personal strategies, because we all know that every individual has their own strategy to crack any exam. So, what were your personal strategies? What were your uniqueness during the preparation phase? So, first, Adrita, come on. Ma'am, in my case, I practiced a lot. I revised the topics quite a lot of time because Okay, that's nice. Now, Shrish, your turn. As I was school going, so I didn't have much time, so I kept my resources very limited. I only used to study the modules which are provided by my coaching institute, and apart from that, I used to practice questions, and my main focus was NCERT based. That first I should cover the all the things given in NCERT, then move one step further, because to ensure that I know everything in NCERT, I have to go one step beyond it. That is very nice. That is actually very important what you said, that you have to focus on NCRT first and then go on any other source. That is good. Now, as you both know, like NEET UG is going to take place just like almost in a month. It's on 12th September and we are already August. It's running. So अब एक महीना ही रह गया है एग्ज़ाम को, तो अभी एक पीक टाइम होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में जो कि उस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो उनके लिए क्या खास टिप्स होती हैं कि उन्हें कैसे अपना माइंडसेट रखना चाहिए एग्ज़ाम के साइड? ड्यूरिंग द लास्ट मंथ आई वुड सजेस्ट कि हर दिन मॉक टेस्ट देना इज नॉट नेसेसरी। रादर देन दैट, जो हम लोगों ने पिछले मॉक टेस्ट दिए थे उनकी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको सीखना चाहिए, एंड उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग मिस्टेक्स रिपीट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हर दिन मॉक टेस्ट देते हैं बट एनालिसिस नहीं करते हैं, तो देयर इज नो यूज फॉर ऑफ दैट मॉक टेस्ट, क्योंकि उससे हम लोग अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं। एंड कुछ हाई यील्ड टॉपिक होते हैं हर सब्जेक्ट्स में, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन टॉपिक जो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो एक ये भी पॉइंट है। एंड Adrita, you? मैम व्हेन देयर्स एक दो महीने का ही बस बचा रहता है एग्जाम के पहले, तो तब तो सारे टॉपिक्स वापस से रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना या फिर जो टॉपिक्स पहले से दिक्कत है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक्स अभी तक हमारा वीक है, तो वो पार्ट प्रैक्टिस करना। और बायोलॉजी अगर रिवाइज किया जा सकता है उसके साथ, वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि बायोलॉजी भूल जाने के चांसेस होता है, बायोलॉजी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब। तो थोड़े रटने वाले पार्ट्स अगर बार बार रिवाइज किया जा सके। और ऐसे फिजिक्स में तो मेनली उस टाइम प्रैक्टिस करना ही बेटर होगा। मैम जितना ज्यादा एक्सपोज कर सके अपने आप को क्वेश्चंस की तरफ, मतलब नीड बेस्ड क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरीली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रेटेजी बेस्ड क्वेश्चंस ही करना अच्छा होगा। उससे पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स वीक है, तो वो प्रैक्टिस करने से वो पार्ट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। सो फिजिक्स में तुम दोनों की क्या अप्रोच था, कैसे तुमने उस सब्जेक्ट को टैकल किया, किस तरीके से पढ़ाई करी, किन टॉपिक्स को पे ज़्यादा एम्फेसिस करा, वो बताओ कि फिजिक्स में अगर किसी को पूरे नंबर लाने हैं तो कैसे लाए जाए। अगर फिजिक्स की बात देखी जाए तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ब्लाइंडली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं विदाउट थ्योरी। तो इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि इवन दो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, बट अगर कोई अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो इसके लिए होता है कि थ्योरी पे भी इक्वली फोकस करना चाहिए, एंड कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कई सारे चैप्टर होते हैं विच में सीम बोरिंग, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, एंड ये सब, तो उनको काफी बच्चे छोड़ देते हैं। बट मेरी एडवाइस है कि ना छोड़ो, उसकी थ्योरी एटलीस्ट एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो। उससे लाइक 2019 में भी क्वेश्चन एडी करेंट्स पे आया था, एंड 20 में भी काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, एंड वी शैल अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्योंकि जैसा हम देखा गया 2020 में कि काफी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे लोगों के काफ़ी मार्क्स कटे, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सिली मिस्टेक्स में तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। और आद्रता आप? मैम फिजिक्स में ऐसा है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर अगर होगा तो इजी हो या टफ क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चन से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थियोरी पार्ट पहले क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला से तो हम लोग ऐसे आ कर ही सकते हैं, फॉर्मूला अगर पता हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले थियोरी पार्ट अगर अच्छे से हो जाए, तो थियोरी में मेनली एनसीईआरटी बेस्ड करना बेस्ट होगा। एनसीईआरटी में इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो उससे थियोरी क्लियर हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी फिजिक्स के ट्रेंड देखे क्वेश्चंस के, तो वो मेनली कैलकुलेटिंग और ज्यादा कुछ टफ टाइप का तो है नहीं। तो कैलकुलेशन को क्लियर अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस इज द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहो, जितने भी क्वेश्चंस है, ज्यादा टफ जाने का जरूरत नहीं है। सो तुम लोग मतलब व्हाट वर योर फेवरेट टॉपिक्स? लाइक मुझे ये टॉपिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये टॉपिक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शिरीष, व्हाट वर योर फेवरेट टॉपिक इन फिजिक्स? My favorite topics were of modern physics, and I didn't like the chapters of waves and simple harmonic motion. Adrita, what were your favorite topics? My favorite topic was whole of the mechanics part. I liked it a lot. I liked solving its questions, and I didn't like the wave part. I didn't like it. So you guys did coaching, right? Yes, ma'am. You went to coaching. So tell us about your coaching experience also. So I went to Akash Institute in Lucknow only. So कोचिंग में काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहता था मैं, बट वी यूज टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम 7 to 7:15. तो इट वाज लाइक अ स्ट्रेस रिलीफ फॉर अस कि सब लोग बाहर इकट्ठा होते थे, बात करते थे, एंड पूरा स्ट्रेस लेवल फिर से नीचे आता था। देन एक और क्लास होती थी, देन घर जाते थे। एंड कोचिंग काफ़ी अच्छी थी कि उसके मटेरियल काफ़ी अच्छा था आकाश का, लाइक नीट ओरिएंटेड था, तो ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉजेंट वेरी हाई लेवल कि बहुत टाइम स्पेंड करना पड़े, एंड एनसीईआरटी ओरिएंटेड था। इट वाज क्वाइट गुड। Nice. And Adrita, I heard that you are from Allen. All the Allen Yes, students ma'am. are looking at you right now. तारीफ ही तारीफ करना आकाश वाले के सामने. There is a rivalry between Allen and Akash. I've heard it. Go on. I am from Alan Kota, so Yes. our actually the studies was really good. We looked forward to it a lot, because the teachers there, they were very interactive, and we found it was really fun to study there. And the coach, if I talk about the coaching materials, it was it had step by study level. Like first you have to go with the basics, then a little higher, then a little higher. It depends upon the students how much you can go, how much you will practice. It depends totally upon the students, but everyone is given such material so that they can start with the basics and then clear up to their own levels. And so the basics were cleared. Even tough questions we did it a lot, but it was always NCERT based, so that we don't stray away from the line of need. Let the audience comment in the comment section, like which coaching do they find best, Akash or Ellen? Okay. Now, so coming to the last question. What are the things that you guys think that one must never do while they are preparing for the NEET UG exam? सो एक बहुत जनरल सी बात है नीट एस्पिरेंट्स में या किसी भी एस्पिरेंट में कि वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कितना पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए। तो इसका कोई फायदा नहीं होता, बस लास्ट में डिप्रेशन ही आता है कि उसने ये पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा। मे बी आपने 2 टॉपिक्स पढ़े हों, लेकिन आपके दोस्त ने 1 टॉपिक पढ़ा, बट वो टॉपिक डिफरेंट निकल गया, तो आपको फिर चिंता होने लगेगी कि उसने ये पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा। देन आपका टाइम वेस्ट होगा, एंड देन आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा।
नाइस। और ये जो बात बोली ना कि तुमने कितना पढ़ लिया, दैट हैपेंस इन कॉलेज टू। हाँ अभी फाइनल, अभी जब तुम लोग प्रॉफ दोगे अपने फर्स्ट ईयर के, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने सारे हैं हॉस्टल में। हाँ। Actually, before the NEET, many students panic a lot. यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। They try to study all the time so that they don't waste even a single second. But it doesn't add to your knowledge. Actually, it deprives you. तो जो पढ़ रहे हो उस टाइम में उससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक कैपेसिटी होता है, उसके आगे नहीं कर सकते, ब्रेन उतना नहीं ले सकता है। तो बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम जैसे कि कोई तो मतलब नीट का प्रिपरेशन सारे बहुत पहले से ही कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 साल से तो कर ही रहे हैं। तो जब खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम की, जब उतना पढ़े ही है 2 साल से, तो अभी इतना ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। और नींद कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नींद अगर कंप्लीट ना होगा तो मेंटली साउंड नहीं रहेगा। और एटलीस्ट 2 to 5 PM जो टाइम है, जिस टाइम नीट होता है, उस टाइम नींद का प्रैक्टिस ना होना ही बेटर है, क्योंकि फिर एग्जाम में नींद भी आ सकती है। So coming to the last question of this session, कि आप दोनों ने, you know, there are times when you are preparing for your entrance exam that you feel like you're not motivated enough, you don't want to go anymore further, you just want to quit. There are times, है ना? So what are the things to keep yourself motivated? What are the things you should think at that point? ऑफ कोर्स के इतने प्रिपरेशन के टाइम में हमेशा मोटिवेटेड रहना या फिर हमेशा खुश रहना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे होता रहता है, तो मूड ऑफ, रोना धोना ये सब चलता रहता है। बट उस टाइम जब मुझे डिप्रेस्ड फील होता था या फिर अनमोटिवेटेड फील होता था, तो मैं बुक कॉपीज हटा के थोड़ी देर अब लेट जाती थी, कि थोड़ी देर टाइम देती थी खुद को, सोचती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ नीट, मैं क्या करना चाहती हूँ। थोड़ा फिलोसॉफिकल सोचती थी कि why am I studying so much when I can like many others I can still enjoy my life this time and like all. But फिर मुझे लगता था कि नहीं, जब मुझे करना ही है तब तो इतना जब मेहनत की हूँ तब तो करना ही पड़ेगा, और मेरा फ्यूचर क्या होल्ड करता है, ये सब सोच के तो मैं वैसे मोटिवेटेड रहती हूँ। जैसा अद्रिता ने कहा कि काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड एक दुख दर्द बांटने वाला कोई होना चाहिए आपके साथ। जैसे आई पर्सनली यूज्ड टू शेयर ऑल माय सैडनेस विद माय मदर, ठीक है, शी वाज क्वाइट सपोर्टिव एंड और मेंटर्स के टच में रहना इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो काफी बच्चों ने कोविड के लॉकडाउन के बाद से छोड़ दिया। सो दे समहाउ लॉस्ट मोटिवेशन एंड दे समहाउ लॉस्ट द ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन। तो एक ये बात आ जाती है कि इमोशनल एज वेल एज मोटिवेशनल सपोर्ट होना चाहिए। तो ये बात है। एग्जैक्टली, डोंट बर्डन योरसेल्फ टू मच, यू नो। यही होती है कि ऐसा मत सोचो कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। उस वक्त तुम कुछ मत सोचो, उस वक्त तुम बस अपना सोचो। जिन्हें जो सोचना होगा वो सोच ही लेगा। तुम बहुत अच्छे मार्क्स में लाओगे तब भी लोग बुराई करने वाले कम नहीं है ना? और तुम फेल होगे तब तो खैर क्या ही बोल। So with this, on this note, we are going to end our second video of Med Talks, and now all of us are saying all the best of luck to all the NEET aspirants who are going to appear in the upcoming NEET exam. All the best, best. All the best, guys. all the best. Yeah, all the best.